अच्छा खोल दो मुझे, इसे दोबारा करो। क्यों करो यहाँ पे कैंसिल करो सर। नहीं नहीं तुम कैंसिल करो। कैंसिल करो। विंडोज को लैपटॉप में विंडोज साउंड पे इसलिए। हाँ ड्राइव नहीं करेंगे। Is the screen sharing to you all? Good morning, students. Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, Peter. Yesterday we have done till development of nation states in Europe, and today will we do the coming topic, impact of other European nations. Right? When the news of events in France reached the different cities of Europe. जब जो news थी फ्रांस की, what was the news of France? What was the news of France, beta? Ma'am, rise of nationalism, or you can say democracy and the liberty. Okay. So when the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of the educated middle class began to setting up the Jacobin club, right? और जो थे सब Jacobin club जो थे वो बनाने लगे थे. Jacobin club was of the people of the third state. Their activities and campaigns prepared the way of French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. तो जो रिवोल्यूशनरीज थे यानी कि जो फ्रांस की जो आर्मी भी थी वो डिफरेंट कंट्रीज में मूव करने लगी, जैसे कि हॉलैंड था, बेल्जियम था, स्विट्जरलैंड था एंड मच ऑफ इटली इन 1790s. Right? Is it clear? Is it clear, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Screen is shareable to all? Screen share हो रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, beta. In 1797, Napoleon invaded Italy and Napoleon War began. As I told you कि नेपोलियन जो थे वो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे जो 1797 में फ्रांस के शासक बन गए थे, उससे पहले बन चुके थे और उन्होंने वो इटली पहुंचे. अब नेपोलियन वॉर जो थे फ्रांस की ओर से शुरू हो चुके थे.
A white territory came under Napoleon control and introduced many of the reforms that he had already introduced in France. अब क्या हो गया कि बहुत सारी टेरिटरीज नेपोलियन के कंट्रोल में आ गई और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए डिफरेंट एरियाज में भी. एंड ऑल्दो नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस, हालांकि नेपोलियन के आने से जो था क्या हो गया, फ्रांस की जो डेमोक्रेसी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, क्योंकि वो एक मिलिट्री डिक्टेटर था. ही वॉज द मिलिट्री डिक्टेटर. ठीक है. बट व्हाट हैपेंड, he destroyed the French democracy, but in administrative field he had introduced large number of reforms. लेकिन उसने प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन किए. ठीक है. एंड नेपोलियन introduced the Napoleon Code, known as Civil Code, in 1804. When did Napoleon introduce the Civil Code? In which year Napoleon introduced the Civil Code, beta? Vinay? Yes, ma'am. When did Napoleon introduce the Civil Code? Ma'am, 1804. 1804 में. ठीक है. And usually he was a military dictator, but he tried to reform the administrative system of Napoleon of France. Is it clear to all of you? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now we can see the Napoleon Code. ये थे Napoleon. This is a picture of Napoleon. Is it visible to all? This is a picture of Yes, Napoleon. ma'am. Napoleon Code. So in 1799 Napoleon seized the political power. सबसे पहले जो था 1799 में नेपोलियन ने पॉलिटिकल पावर को सीज कर लिया. ठीक है. सीज इन द सेंस घेराबंदी कर ली. एंड देन ही गेव अ कोड नोन एज नेपोलियन कोड इन 1804. तो इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में. When did Napoleon seize the political power? Seize मतलब घेरना. उन्होंने पॉलिटिकल पावर का, फ्रांस की पॉलिटिकल पावर को कब घेर लिया था? Ma'am, 1799. 1799 में. And when did he introduce the civil code? 1804. 1804 में. बच्चा एक चीज और है कि आप लोग जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं या तो सिविल कोड ऑफ 1804 या पूछ सकते हैं नेपोलियन कोड. तो अगर मान लो एग्जाम में नेपोलियन कोड आ रहा है या एग्जाम में आ रहा है सिविल कोड ऑफ 1804, नागरिक संहिता थी ये 1804 में लागू की गई थी, विधि संहिता, तो इसको आंसर सेम होगा आपका. मान लो अगर क्या चीज आती है, सिविल कोड आता है एग्जाम में या नेपोलियन कोड आता है, तो आंसर विल द सेम. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now we'll do the Napoleon Code 1804. 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था, जिसको नॉर्मली नेपोलियन कोड बोला जाता है. इस नेपोलियन कोड के अनुसार जितने भी जन्म के अधिकार पर जन्म के आधार पर विशेष अधिकार मिले थे उन सबको रिमूव कर दिया गया था. ठीक है. और वहां पर इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर दी गई थी और राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया गया था. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. In 1804 Napoleon Code was introduced, known as Civil Code, also known as Napoleon Code also, under which removed all the privileges based on birth. यानी कि जन्म के अधिकार पर आधार पर जो भी विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था, इक्वालिटी को एस्टैब्लिश कर दिया गया था, एंड जो है सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, इवन राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को भी जो था वो सिक्योर कर दिया गया था. दिस कोड वाज एक्सटेंडेड टू रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल. और ये जो कोड था वो फ्रेंच कंट्रोल के रीजन में, जहां जहां उसके कंट्रोल थे वहां वहां ये नियम लागू किया गया था. इन डच कहाँ पे लागू किया था? इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी. ठीक है.
Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Anybody has doubt? Can anybody tell me the name of Napoleon Code? Another name of Napoleon Code? Ma'am, Civil Civil Code. Code of Ma'am, Civil Code. 1804. Yes, Civil Code of 1804. In which places this was spread out? Ma'am, Dutch Ma'am, Republic, in Dutch Republic, Italy, Yes, Switzerland, and Italy, Germany. and Germany. yes. Dutch Republic, Switzerland, Italy and Germany. ठीक है? In this, Napoleon simplified the administrative division. उन्होंने जो प्रशासनिक विभाजन होता था उसको बहुत आसान बना दिया था. उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था. फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है बच्चों कि जो जमींदार होते थे जहाँ लैंडलॉर्ड्स होते थे और जो ये लैंडलॉर्ड्स थे वो किसानों पर अत्याचार करते थे. तो इस तरह का जो सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम उसको उन्होंने अबॉलिश कर दिया था. और जो किसान लोग थे उनको भी आजाद कर दिया गया था सर्फडम से, उनकी दास प्रथा से. और जो थे जितने भी जागीरों पर, मैनुअल मतलब जागीर, तो जागीर पे जितने भी टैक्स होते थे उन सबको समाप्त कर दिया था. ठीक है? तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे नेपोलियन कोड के बारे में तो आप ऊपर वाली लाइन में लिख सकते हैं. सबसे पहले ही रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. बर्थ के जन्म के अधिकार के आधार पर सभी को समाप्त कर दिया गया था. ऑल वर इक्वल बिफोर द लॉ. सभी कानून के बराबर थे. फिर राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया था? मैम लागू कर दिया गया था. उसको सिक्योर कर दिया गया था. राइट. फिर इसके अलावा नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को बहुत आसान बना दिया, सिंप्लीफाई कर दिया था. कौन से सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था? Which system was abolished? Ma'am, federal system. फ्यूडल सिस्टम बेटा. फ्यूडल सिस्टम का मतलब था लैंड लॉर्डिज्म, जमींदार लोगों के शासन को खत्म कर दिया था. और जिससे कि जो आम किसान थे वो दास प्रथा से, दासता से खत्म हो गए. सर्वडम मींस द पीजेंट्स, दोज हु वर द स्लेव्स, वो फ्री हो गए. और जो मैनुअल ड्यूज होते थे यानी कि जो जागीरों पर जो टैक्स लगाए जाते थे उनको भी खत्म कर दिया गया था. राइट. देन इन द टाउन गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड. और शहरों में जो गिल्ड्स होती थी, गिल्ड क्या होता था? व्यापारियों का संगठन. व्हाट वाज गिल्ड? व्हाट वाज गिल्ड बेटा? व्यापारियों का संगठन. यस, गिल्ड वाज द जो व्यापारियों का संगठन होता था उसको भी क्या कर दिया गया था? उसको भी रिमूव कर दिया गया था. फिर जो ट्रांसपोर्टेशन था, कम्युनिकेशन था, उसको इम्प्रूव किया गया था. फिर पीजेंट्स थे, आर्टिशंस थे, वर्कर्स थे, न्यू बिजनेसमैन थे, वो उनको नई आजादी मिल गई थी. किस किस को आजादी मिल गई? मैम मर्चेंट्स को, बिजनेसमैन को, पीसेंट्स को. हाँ, और And artists. न्यू बिजनेसमैन को. ठीक है. अब जो बिजनेसमैन थे और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे गुड्स के इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज. यानी कि अब सब जगह जो था नेपोलियन ने सब जगह यूनिफॉर्म लॉ लगा दिए थे. यूनिफॉर्म लॉज का मतलब था सब जगह एक जैसे कानून लागू हो गए थे. और जो वेट्स एंड मेजर्स था उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था. और कॉमन जो नेशनल करेंसी थी उस लगा दी गई थी. सब जगह एक जैसी करेंसी होगी. और यानी कि अगर कोई एक मूवमेंट्स ऑफ गुड्स यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड हो रहा है तो कैपिटल अगर है तो सब जगह एक जैसा था, सब जगह यूनिफॉर्मिटी आ गई थी. इज इट क्लियर? यस मैम. मैं एक बार वेट कर दिए. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब बच्चों को क्लियर हो गया ये वाली बात? मैं एक बार फिर से बता दीजिए लास्ट वाली. लास्ट लाइन बेटा, लास्ट लाइन में ये है कि जो बिजनेसमैन थे ना और जो प्रोड्यूसर्स थे, जो बिजनेसमैन थे जिसे हम कह सकते हैं, और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे वो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते थे और पूरे
फ्रांस कंट्री में यूनिफॉर्म लॉज यानी कि एक जैसे कानून बना दिए गए, सब चाहे वो अमीर था चाहे वो गरीब था, उन सबके लिए एक जैसे कानून बना दिए गए। जो वेट्स एंड मेजर्स थे यानी कि नाप तोल, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको ये भी बताया था कि मान लो इंडिया का ही हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे मान लो आधा केजी है और आधा केजी में 500 ग्राम है तो पूरे इंडिया में चलते हैं, तो वैसे ही उन्होंने वेट्स एंड मेजर्स को भी पूरे फ्रांस में लागू कर दिया था। सब जगह एक जैसी करेंसी को लागू कर दिया गया था। लोग जो थे वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर सकते थे, है ना। और कैपिटल मीन्स द मनी, मनी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. मैं एक बार फिर से पूरा नेपोलियन कोड रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। नेपोलियन कोड का मतलब था 1804 में जब नेपोलियन जो थे उन्होंने विभिन्न अन्य कंट्री से वॉर्स लड़े थे और वो जीत गए थे, तब उन्होंने फ्रांस में एक नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था सिविल कोड ऑफ 1804। ठीक है, इसमें जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, जैसे कि राजा था, राजा के बाद उसका पुत्र ही राजा बनेगा, ये अधिकार खत्म कर दिया गया और सबको इक्वल बिफोर द लॉ माना गया। ऑल वर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, सभी क्या है, किसके बराबर है? कानून के बराबर है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देन जो भी राइट टू प्रॉपर्टी, जिसका भी संपत्ति का अधिकार था उसको सिक्योर किया गया था। फिर इसके जो नेपोलियन के जो रिफॉर्म्स थे वो अन्य देशों में भी पहुंच गए थे, जैसे कि डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में। ठीक है, और नेपोलियन जो थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिवीजन को जो था वो सिंप्लीफाई कर दिया था, आसान कर दिया था। फ्यूडल सिस्टम जो था उसको भी अबॉलिश कर दिया था, और जो पीजेंट्स थे उनको दास प्रथा से जो था उनको स्वतंत्र किया गया था। और जितने भी मेनोरियल मीन्स जागीर, जितनी भी जागीर थी उसको खत्म कर दिया गया था। और इवन जो टाउन्स में गिल्ड्स हुआ करते थे उन पर भी क्या कर दी गई थी, उसको उन पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उसको खत्म कर दिया गया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया गया था। पीजेंट्स, आर्टिजन वर्कर्स, न्यू बिजनेस पीपल, दे वर एंजॉयिंग द फ्रीडम नाउ। और जितने भी बिजनेस मैन थे या स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे वो अब रियलाइज करने लगे थे कि कंट्री में यूनिफॉर्म लॉ हो चुका था। वेट्स एंड मेजर्स जो थे उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था, एक जैसी करेंसी थी, एंड नाउ दे कैन एक्सचेंज द गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके बेटा। जो नेपोलियनिक कोड था, पीपल ऑफ अदर यूरोपियन कंट्री इनिशियली वेलकम द फ्रेंच आर्मी बट लेटर बिगिन टू अब्यूज देम। अब क्या हो गया कि नेपोलियन कोड की कुछ कमियां भी थी, जैसे कि लोग उसका अपोज करने लगे थे, जैसे कि टैक्सेस इंक्रीज हो गए थे, इसमें भी सेंसरशिप लगा दी गई थी, प्रतिबंध लगाए गए थे, और फ्रांस के लोगों को जबरदस्ती कहा जाता था कि उनको सेना में भर्ती करना है। तो दीज वर द three you can say oppositions opposed by the people of France। क्या क्या थे वो, किस चीज का अपोजिशन कर रहे थे? तीन चीजों का। Ma'am, Ma'am, increase increase taxes. taxes, यस, censorship, and they were forced to join the French army. सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध। कई जगहों पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए थे ना, सेंसर कर दिया था उसको। तो उन सबका क्या किया कि जैसे सेंसर कैसे किया, जैसे फॉर एग्जांपल भाई जिन लोगों के विशेष अधिकार छीन लिए गए थे, या जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया था, तो इन सब पर भी लोगों ने उसका क्या किया था? विरोध किया था। फिर जो लोग थे उनको जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में जो था को ज्वाइन करवाया जा रहा था। Now we can see the topic बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर। एक्चुअली जो लुई 16 थे वो बर्बन जाति के थे, तो उसको रिस्टोर किया जा रहा था। तो रिस्टोर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिस्टोर? खोई हुई या चुराई हुई वस्तु को लौटाना या वापस करना। ठीक है। However, these changes were not liked by some empires। जो नेपोलियन ने जो चेंजेस लागू किए थे उसको बहुत सारे एम्पायर ने पसंद नहीं किया था, जैसे कि पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन।
So they collectively defeated Napoleon in Battle of Waterloo in 1815. अब कौन लोग थे, कौन सी कंट्रीज थी जो कि नेपोलियन कोड को पसंद नहीं कर रही थी? मैम पर्सिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन. Yes, Persia, Russia, Austria, and Britain were the countries who do not like the Napoleon Code. Did not like the Napoleon Code, and so they all collectively defeated. अब ये joint हो गए, सबके सब मिल गए. कौन-कौन 4 जने मिले? Persia, Russia, Australia, Britain. Yes, Persia, Russia, Austria, and Britain. They collectively defeated Napoleon. ये सब मिल गए, इन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली, एक जॉइंट आर्मी बना ली, और इन जॉइंट आर्मी में नेपोलियन को उन्होंने हरा दिया. ठीक है, एंड नोन एज बैटल ऑफ वाटरलू. नोन एज बैटल ऑफ Waterloo. Yes. Is it clear to all of you? Yes, sir. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Where is Waterloo? Waterloo is in Ontario in Canada. Ontario in Canada. Ontario in Canada में है Waterloo, जहाँ पे नेपोलियन हार गए थे in the Battle of Waterloo. आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Where was Battle of Waterloo held? या when was Battle of Waterloo held? When it was held? Ma'am, Battle of Waterloo was held in 1815 and it was held the place Canada. In Canada. ठीक है. Restored the Bourbon dynasty. अब जैसे ही नेपोलियन हारे तो इन सब ने, पर्शिया ने, रशिया ने, ऑस्ट्रिया ने, ब्रिटेन ने, इन सब ने बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर लिया. अब फ्रांस में लुइस 18 जब आए तो वहां पर यानी कि बैटल ऑफ वाटरलू के बाद फ्रांस में लुइस 8 आ गए एंड ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस. इज इट क्लियर? सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम. को कोई डाउट हो Yes, तो ma'am. पूछ सकते हैं बेटा. अब हम आते हैं कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि ऐसी क्या चीजें थी जिससे कि यूरोप में नेशनलिज्म आ गया. मिड 18th सेंचुरी तक तो वहां पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं था यूरोप में. ठीक है, जैसे कि जर्मनी था, इटली था, स्विट्जरलैंड था. दे वर ऑल डिवाइडेड इनटू डचीज, किंगडम्स एंड कैंटन्स. यानी कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज डचीज में डिवाइड थी, किंगडम्स में डिवाइड थी, कैंटन में डिवाइड थी. और जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोपियन थे वहां पे एरिस्टोक्रेट रूलर था. तो अभी तक कहीं पे भी नेशन स्टेट नहीं था. यस्टरडे आई टोल्ड यू व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट? मैम जहाँ पर इक्वल राइट्स हो और सब लोगों को अधिकार मिले एक से. Where the people they have a belongingness towards their land, fatherland, है ना? वो लोग वो नागरिक जिन्हें नागरिकता मिले और जो अपने देश के प्रति क्या होते हैं, वफादार होते हैं, और वो उनका अपना एक फादरलैंड होता है. दैट इज कॉल्ड नेशन स्टेट. तो अभी तक मिड ऑफ 18th सेंचुरी तक कहीं भी यूरोप में नेशन स्टेट नहीं था, क्योंकि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड ऑल वर डिवाइडेड इनटू डचीज, किंगडम्स एंड कैंटन्स. और इसी तरह से जो ईस्टर्न यूरोप था, सेंट्रल यूरोप था, वहां सब क्या था, ऑटोक्रेट रूल था. इज इट क्लियर? जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी में हैप्सबर्ग एम्पायर था, पैच ऑफ डिफरेंट रीजन एंड पीपल, जहां पर ऑस्ट्रिया हंगरी में डिफरेंट रीजन के लोग रहा करते थे. इट इंक्लूड ट्रोयल्स, ऑस्ट्रिया, सुदेतनलैंड में, देन एरिस्टोक्रेसी, जर्मन स्पीकिंग पीपल, ये सब वहां पर रहा करते थे. ठीक है. इट ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस लोम्बार्डी एंड वेनेटिया. इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी था वहां पे हैप्सबर्ग एम्पायर था, जहाँ पे डिफरेंट रीजन के लोग रहा करते थे, एक जैसे नहीं थे. इंक्लूडेड अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजन, यहाँ पे जो था किसान भी थे और डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग भी थे. द ओनली बाइडिंग टाई वाज कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर
और केवल अगर उन चीज को अगर कोई बांधा हुआ था तो केवल राजा था, शासन था। यानी कि इन सब जगहों पर कौन सा शासन था बच्चों? राजतंत्र शासन था। ऑस्ट्रिया हंगरी में कौन सा शासन था? राजतंत्र शासन था, यानी कि डायनेस्टिक रूल था। यानी कि कौन सा अंपायर था? हैप्सबर्ग। विच अंपायर वाज इन ऑस्ट्रिया हंगरी? What named empire? Ma'am, Habsburg Happers, Empire. yes, Hapsburg Empire. So it means क्या वहां पे एक जैसे लोग थे? No, ma'am. Yes, there No, were ma'am. different kind of people lived there. German speaking भी थे, Italian speaking भी थे, even small peasants were also there. But only the binding tie, उनके बीच में जो बंधन का एक सूत्र था, that was the king only, emperor. क्योंकि वहां पे क्या था? राजतंत्र शासन था, क्योंकि वहां पे मोनार्की थी। Is it clear? तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको नेशनलिज्म जैसी फीलिंग आ रही है? No, ma'am. Why? No, ma'am. Why? मैम क्योंकि वो जहाँ जो लोग वहां पर रहते थे ना, वो उनका फादर स्टेट नहीं था, और वहां पर सबसे बड़ी बात मोनार्की थी, और सबको इक्वल साइज नहीं मिले होते ना, सब एक जैसे से। यस, और लेकिन बाइंडिंग कौन कर रहा था? हु वाज बाइंडिंग? द किंग, एम्परर। किंग। एम्परर मतलब किंग, किंग उनको बांधे हुए था। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा, हम यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं, एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जो हमने आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, नोबल्स लोग, हाई क्लास के जो लोग होते हैं, उसको रिच पीपल जो होते हैं उनको हम एरिस्टोक्रेसी पीपल बोलते हैं। नोबल्स होते हैं, किंग्स आ गए, किंग्स के जो रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स होते थे या कोर्ट के जो दरबारी होते थे, दे ऑल कॉल द एरिस्टोक्रेसी, अभिजात वर्ग। हिंदी में इसको हम अभिजात वर्ग बोलते हैं। देन द पीजेंट्री, पीजेंट्री मीन्स द जो दास जो किसान होते थे उनको हम पीजेंट्री बोलते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था? एरिस्टोक्रेट्स, हाई क्लास लॉर्ड्स, यहाँ पे जो उच्च वर्ग के जो जमींदार थे वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास में आते थे। इनकी पॉपुलेशन कम थी, लेस पॉपुलेशन थी, बट दे वर डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग मतलब प्रभावशाली थे। इनका समाज में बहुत बड़ा दबदबा था। किसका? Aristocracy. एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी में कौन लोग आएंगे बच्चों? एरिस्टोक्रेसी में हाई क्लास लॉर्ड्स आएंगे, यानी कि उच्च क्लास के जमींदार आएंगे, बड़े जमींदार आएंगे। लेस पॉपुलेशन होगी, उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम थी, और दे वर डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग मींस उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था समाज पे। एंड ऑल राइट्स, एंड दे वर गिवन ऑल राइट्स, उनको इक्वल राइट्स, सभी को जो जितने भी एरिस्टोक्रेट पीपल थे उन सबको अधिकार दिए गए थे। लेकिन जो पीजेंट्री क्लास थी ना बेचारी, वो लैंडलेस भी होते थे, लो क्लास लैंडलेस, यानी कि वो लोग जिनके पास अपनी जमीनें भी नहीं थी। वो लोग, यू कैन सी इन द पिक्चर, इस पिक्चर से आपको डिफरेंशिएट हो रहा है ना? देखो वहां पे बिल्कुल वैभव सा जीवन है, उनका वैभवशाली जीवन है। अपने उन्होंने बहुत मेहनती कीमती कपड़े पहने हुए हैं, कीमती भोजन कर रहे हैं, उनके पास सारे अधिकार हैं, वो डोमिनेटिंग थे, वो प्रभावशाली थे, है ना? और इधर आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि जो किसान है बेचारा, उसके पास तो वो लैंडलेस है। लैंडलेस मतलब उसके पास जमीन भी नहीं है, और उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी, और कोई भी अधिकार नहीं दिए थे। Can anybody tell me the differentiate between aristocrat class and peasantry? मैम एजुकेटेड क्लास हैज हाई क्लास। Beside विनय, विनय के अलावा बताओ कोई बच्चा। Aristocracy. Yes, Aristocracy has high classes lord. They are yes, less educated and they are dominating and they yes, have all the rights. But the peasantry did not have lands or if have so they are very less. They are yes. population and they have no rights. What about peasantry? Repeat the peasantry, please. Peasantry did not have any lands and if Yes, have so they are very less. They are yes, in population and they did yes. not have any right. Yes, they did not have a right. You can see from the picture. पिक्चर से आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि वो लोग हाई क्लास के लॉर्ड्स थे. दे हैड अ लेस पॉपुलेशन, डोमिनेटिंग इन सोसाइटी, एंड ऑल काइंड ऑफ राइट्स वर गिवन टू एरिस्टोक्रेटिक क्लास, राइट? Peasantry, they were the landless laborers, and their population was more and no rights were given to them. This is a diversity structure of Europe society.
तो यूरोपीय समाज में विभिन्नता थी। तो या इस फिगर को देखकर बच्चों आप बताओ कि क्या वहां पे इक्वालिटी थी? नो मैम। No, देयर वाज ma'am. नो इक्वालिटी इन वेयर? इन यूरोप। यूरोप में कोई भी इक्वालिटी नहीं थी। सोसाइटी इस समय दो पार्ट में डिवाइड हो रखी थी, या तो बहुत अमीर लोग थे या फिर बहुत ही गरीब लोग थे। अमीर लोगों की संख्या बहुत ही कम थी, लेकिन उनका समाज में प्रभाव था और उनको विभिन्न प्रकार के क्या दिए हुए थे? विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए थे। पीजेंट्री में लैंडलेस लेबर होते थे, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके। अब क्या हुआ कि एक न्यू मिडिल क्लास एमर्ज हो गई। Beside aristocracy and peasantry, a new class emerged in Western and Central Europe due to development of industrial growth. बच्चों, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, तो वहां पर एक नई मिडिल क्लास यूरोप में खड़ी हो गई, एरिस्टोक्रेसी और प्रेजेंट्री के अलावा। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? व्हाट डू यू नो इंडस्ट्रियल ग्रोथ? इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब होता है कि जहाँ पे फैक्ट्रीज लगती हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पैसा इंडस्ट्रीज में लगाता है, और जहाँ पे जो लेबर्स होते हैं उसमें वो काम करते हैं, और जो उद्योगपति होते हैं इस इंडस्ट्री से उनको बहुत ज्यादा मुनाफा आता है। ठीक है। अब ये जो न्यू मिडिल क्लास थी, इसमें कौन कौन लोग आ गए? इस न्यू मिडिल क्लास में जो लोग कंप्राइज हुए, जो लोग इंक्लूड हुए, वो कौन कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, एजुकेटेड पीपल थे। हैं? 4 जने थे। कौन कौन थे? कैन एनीबॉडी टेल मी? न्यू मिडिल क्लास में कौन And कौन? industrialist, businessmen, professionals, and educated middle class people. यस। लिबरल मीन्स उदारवादी होना, बहुत ज्यादा लिबरल है। ठीक है। बहुत ज्यादा हार्श ना होकर कैसे हैं? वो बहुत ही उदारवादी है। ठीक है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, एजुकेटेड लिबरल्स, दे वर ऑल इंक्लूडेड इन द न्यू मिडिल क्लास। Though their number was small till 19th century, but the idea of national unity and abolition of aristocracy privilege gained the popularity. अब देखो 19th century में जाकर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा फैलने लगा, और उसका रीजन था राइज अप ऑफ न्यू मिडिल क्लास। और ये जो नई मिडिल क्लास थी ना, वो क्या करती थी? वो एरिस्टोक्रेसी के विरुद्ध आवाज उठाने लगी। हालांकि इनकी संख्या कम थी, लेकिन इनकी जो नेशनल यूनिटी थी, इनका जो आइडिया था कि कंट्री में यूनिटी आनी चाहिए और एरिस्टोक्रेसी अबॉलिश्ड होनी चाहिए, उनके जो उनको राइट्स मिले वो खत्म होने चाहिए, इस सबको खत्म करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? क्रेडिट किसको जाता है? न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास को इसका क्रेडिट जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा। एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि यूरोपियन जो सोसाइटी थी, देयर वाज अ डाइवर्जेंस, देयर वाज disunity, because there was the groups divided into 2 parts, aristocracy and peasantry. बट यूरोपियन कंट्रीज में धीरे धीरे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगा, इंडस्ट्रीज आ गई, और जिसके कारण वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में डेवलपमेंट होने लगे, और ये जो डेवलपमेंट थे रिजल्टेड इनटू राइज अप ऑफ न्यू मिडिल क्लास, यानी कि उद्योग लगने से नई मिडिल क्लास बनने लगी, जो किसके अगेंस्ट थी? एरिस्टोक्रेसी के। और ये जो मिडिल क्लास था, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, एजुकेटेड लिबरल्स थे। इज इट क्लियर? अब क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है बेटा। और ये जो न्यू मिडिल क्लास थी, इन्होंने आवाज उठाई। ये आवाज किसके अगेंस्ट में उठाई? एरिस्टोक्रेसी क्लास के अगेंस्ट में। क्योंकि आपको पता है कि एरिस्टोक्रेसी क्लास कैसे थे? कैन एनीबॉडी टेल मी? Ma'am, they were dominating. They have given all rights, and they were rich Yes, and very good, Ashya. They were very rich. They were dominating in society and having all kind of ma'am, rights. and they were enjoying privileges also. Yes, they were enjoying And the they have privileges. a And this high shows amount there was a society of aristocracy only. तो इस एरिस्टोक्रेसी क्लास के विरुद्ध आवाज उठाई किन लोगों ने? द न्यू मिडिल क्लास।
And new middle class comprised of industrialists, businessmen, professionals, educated liberal middle class. And they gave the popularity in rising the nationalism in France. इन्होंने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया किन लोगों ने? न्यू मिडिल क्लास ने. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके बेटा. अब हम पढ़ते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म आ गया. और लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जो लिबरलिज्म जो वर्ड है यानी कि उदारवादिता, ये जो वर्ड है वो लिबर यानी कि फ्री से लिया गया है. तो लिबरल होना, फ्री होना, और ये जो इनफैक्ट डिमांड थी लिबरलिज्म की, इट वाज शेयर्ड ओनली बाय द न्यू मिडिल क्लास. यानी कि फ्रांस में जो नई मिडिल क्लास बना था या यूरोपियन कंट्रीज में जो न्यू मिडिल क्लास बनी थी, उन्होंने सबसे पहले लिबरलिज्म वर्ड का यूज किया, जिसका मतलब था फ्री, फ्रीडम होना. ठीक है. और जो न्यू मिडिल क्लास थी इनफैक्ट डिमांडेड इन पॉलिटिकल स्फीयर, उन्होंने क्या क्या मांग की? सबसे पहले क्या कहा उन्होंने? इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, सभी कानून के समक्ष बराबर हों, ऐसे अधिकार की मांग किसके द्वारा की गई? न्यू मिडिल क्लास के द्वारा की गई. फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, जो व्यक्ति जो दास थे उनको आजादी मिलनी चाहिए. नॉट अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे. इसका मतलब क्या हो गया कि सबके पास लैंड होना चाहिए. गवर्नमेंट बाय कंसर्न, और जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए वो जनता के राय पर ही वो गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए. ठीक है. देन रिवोल्यूशनरी फ्रांस, राइट टू वोट. अब फ्रांस में क्या आया? राइट टू वोट होना चाहिए. इलेक्टेड एक्सेसिव टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन एक्सक्लूडिंग पॉलिटिकल राइट. तो ये सब चीजों के लिहाज से कि हर व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए और सारी की सारी महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए. अभी तक हमने ये पढ़ा था ना कि जो पुरुष थे केवल उन्हीं को ही वोट दिए जाते थे, वोट देने का अधिकार था. तो महिलाओं को अभी तक पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे, तो उसके लिए आवाज उठने लगी. And so throughout the 19th and 20th century, women and non-property men मतलब जिनको संपत्ति नहीं मिली थी, उन्होंने अपने एजिटेशन शुरू कर दिए, उन्होंने अपने मूवमेंट शुरू कर दिए फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड लैंड्स फॉर प्रॉपर्टी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चों ये क्लियर हो गया आपको? What do you mean by the term liberalism? वॉइस ऑडिबल है ना? ओके, आज की क्लास हम यही शुरू खत्म करते हैं बिकॉज यू हैव अनदर क्लास. ओके, बाय बच्चों. जय मैम. जय हिंद मैम. जय हिंद बेटा.